start with the topic vapor pressure of liquid solutions and Raoult's law from your chapter solutions, which you have already read from our senior lecturer Shakti sir. And I am going to discuss with you the vapor pressure of liquid solutions and Raoult's law. As you know, what is vapor pressure? Vapor pressure of any liquid or solutions is the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the vapor pressure of that liquid or solutions at a particular temperature. And this vapor pressure depends upon two factors. One is nature of liquid and another is temperature. As nature of liquid means weaker the intermolecular forces between the liquids, greater will be the vapor pressure, or you can say greater will be the tendency of that liquid or solutions to leave the liquid state and come into the vapor state. कहने का मतलब है जितनी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लिक्विड की या सॉल्यूशन की आपस में फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतनी ही उस लिक्विड या सॉल्यूशन में ज्यादा टेंडेंसी होगी एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब हवा में उड़ने की टेंडेंसी, वेपर बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. दूसरा फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर सेज दैट on increasing the temperature, the kinetic energy, the concept is the kinetic energy of that liquid or solutions goes on increasing. As kinetic energy of the molecule, liquid molecule or solution molecule goes on increasing, as kinetic energy increases, the vapor pressure of that liquid or solutions also goes on increasing. So both these factors says that weaker the intermolecular interaction in the liquid, greater will be the vapor pressure. Stronger the intermolecular interactions between the liquid or the solutions, lesser will be the vapor pressures. Means there will be lesser escaping tendency of that liquid or the solutions. And temperature says that on increasing the temperature of the liquid or the solutions, the kinetic energy of that same liquid or solutions goes on increasing and the vapor pressure goes on increasing. So on explaining this vapor pressure, our next topic is Raoult's law for two volatile components which are liquids, और वो दोनों components liquids होंगे and are miscible with each other. Okay. Raoult's law जो हम explain करेंगे that is for volatile components and both the components are miscible with each other, means they form the homogeneous mixture. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी वेपर प्रेशर का कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे हम. अगर मैं एक बीकर में बेंजीन ले लूं, दूसरे बीकर में मैं टॉल्विन ले लूं, ओके, तो यहां पे जो इनको मैं थर्मोस्टेट पे रखूं ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे इनको हीट मिलेगी दे विल गेट देयर वेपर प्रेशर. यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज प्योरली ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन. ठीक है, दिस वेपर प्रेशर इज प्योरली ड्यू टू बेंजीन. सो जब भी हम वेपर प्रेशर किसी प्योर स्टेट का लिखेंगे हम यहां पे P0 रिप्रेजेंट करेंगे, P0 बेंजीन. इस बीकर में जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ओनली ड्यू टू द टॉल्वीन. ठीक है, सो यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे P0 टॉल्विन. हियर वी रिप्रेजेंट P0 बेंजीन, हियर वी रिप्रेजेंट P0 टॉल्विन. इस बीकर में जो वेपर प्रेशर बना दैट इज प्योरली ड्यू टू द बेंजीन. सो देयर इज द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट, सो देयर इज द वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन इन द प्योर स्टेट. And when we take another beaker and we both mix this benzene and toluene, okay, on thermostat, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट वेपर प्रेशर इज बोथ ड्यू टू बेंजीन एज वेल एज टॉल्विन.
ठीक है। इस वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। दिस वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके, बिकॉज यहां पे जो वेपर प्रेशर है वो बेंजीन की वजह से भी है, यहां पे जो वेपर प्रेशर है वो टोल्यूइन की वजह से भी है। अब दोनों का वेपर प्रेशर जब हम लेंगे तो दैट इज टोटल वेपर प्रेशर। अब पूरे बीकर का वेपर प्रेशर लेंगे तो वो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर P दैट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। लेकिन यहां पे इस बीकर में जो वेपर प्रेशर है दैट इज ओनली ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन प्योर स्टेट। हेयर द वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द बेंजीन इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट्स के लिए हम नॉट लगाएंगे, ओके। पार्शियल के लिए हम स्मॉल p करके रिप्रेजेंट करेंगे और कैपिटल P के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे टोटल। जब हमने टोटल वेपर प्रेशर लेना है कहीं भी किसी भी बीकर में जहां पे हमने 2 वेपर प्रेशर रखे हैं वहां पे हम टोटल के लिए बड़ा P लगा देंगे और छोटे p जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन which is defined as the mole fraction is the number of moles of that component divided by the number of moles of all the components present in the solution. Means अगर हम एक component ले रहे हैं A component तो X A represents the mole fraction of that component, ठीक है। This is equal to number of moles of that component divided by the number of moles of all the components present in the solutions. All the components are what? These are the two components A and B. Means mole fraction of A is equal to Na divided by Na plus Nb. Similarly, mole fraction of B component that is equal to number of mole of B component divided by number of mole of all the components present in the solutions. Okay, and now I am going to start with the topic Raoult's law. A scientist, French chemist you can say, that explains that when we take the vapor pressure of liquid solutions and when we consider mixture of two completely miscible volatile liquids A and B, representing that A and B having the mole fraction, means 2 volatile liquids हमने यहाँ पे लिए हैं, एक का नाम A है और दूसरे का नाम B है, और A की मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे XA के साथ और B की मोल फ्रैक्शन को नेचुरली रिप्रेजेंट करेंगे हम XB के साथ. Suppose at certain temperature their partial vapor pressure, which I have already explained you what is partial vapor pressure. ठीक है, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं partial vapor pressure, जिसको हम small p a और small p b से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड p नॉट a and p नॉट b are what, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. p नॉट a और p नॉट b क्या होंगे? उनके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट्स. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट the vapor pressure of any component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी. राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर हम जिस भी कंपोनेंट का सोल्यूशन में लें, अब आपको पता है राउल्ट्स लॉ यहाँ पे क्या ले रहा है? यहाँ पे 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स ले रहा है, वो सोल्यूशन ले रहा है ऐसे 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स का जो आपस में कंप्लीटली मिसिबल्स हैं. वो 2 कंपोनेंट्स को हमने नाम दे दिया है A और B करके. उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, जैसे हमने A कंपोनेंट रखा यहाँ पे, तो वो किसके बराबर होगा? उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर, उसी की मोल फ्रैक्शन के बराबर और उसी के वेपर प्रेशर के बराबर, लेकिन इन प्योर स्टेट. ओके, मींस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A बट इन प्योर स्टेट. Similarly, according to Raoult's law statement, partial vapor pressure of component B is equal to the mole fraction of component B multiplied by the vapor pressure of component B but in pure state. This is the definition of Raoult's law, जो आपने अच्छे से याद करनी है. और इसके भी मार्क्स अकॉर्डिंग टू की पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली मार्क्स के हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस की सेटिंग होती है. डेफिनेशन के मार्क्स, एक्सप्रेशन के मार्क्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स, हर एक चीज के मार्क्स जो हैं सेटिंग की गई होती है, जो आपने अच्छे से लिखना है. नाउ
अगर ये हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर है तो P हमारे पास अब क्या होगा, कैपिटल P इज अवर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सिस्टम एट द सेम टेम्परेचर। देन बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ जो है पार्शियल प्रेशर्स का, वो हमें क्या कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, दैट P इज इक्वल टू PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। तो PA क्या है, दैट इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट B एंड PB इज व्हाट, दैट इज XB इंटू P नॉट B। अब मैं XA की जगह 1 माइनस XB भी लिख सकती हूँ, P नॉट A प्लस XB P नॉट B, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया दैट P इज इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A। अगर मैं यहाँ पे देखूं सो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे, ठीक, क्यों, क्योंकि P नॉट B, P नॉट A, P नॉट A, दीज आर ऑल द कांस्टेंट कंपोनेंट्स, दीज आर ऑल द कांस्टेंट क्वांटिटीज, क्योंकि ये सब वेपर प्रेशर क्या हैं, प्योर स्टेट्स के, और प्योर स्टेट्स के वेपर प्रेशर वेरिएबल नहीं होंगे, वेरी नहीं करेंगे, चेंज नहीं होंगे। सो चेंज क्या चीज करेगी, दैट इज ओनली टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी हमारी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनेगी, ग्राफ यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का जो बनेगा दैट इज विद वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वो बनेगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, क्योंकि वेरिएशन हमारी बाकी सब कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, हमारी वेरिएशन आ रही है सिर्फ मोल फ्रैक्शन, वो चाहे XB भी ले सकते हैं हम, XA भी ले सकते हैं, क्योंकि XA हमने किसके बराबर ले लिया है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस XB, वो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ले लेंगे और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया। मोल फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, जैसे XA यहाँ पे अगर हमने 1 ले लिया तो XB यहाँ पे हम 0 रखेंगे, यहाँ पे XA हमारा 0 है और XB यहाँ पे हमारा 1 है। इस मोल फ्रैक्शंस का क्या मतलब है, ये आप इस तरह से समझ लो कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब्स रखी गई हैं 9, ठीक है, जिसमें एक में अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक ही कंपोनेंट डाला है हमने, दैट इज 1 कंपोनेंट, ए कंपोनेंट, ठीक है, B हमारा 0 है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट कम होता जा रहा है, बीच में एक मोल फ्रैक्शन आएगी, दैट इज XA इज इक्वल टू 0.5 एंड XB इज इक्वल टू 0.5, यानी बीच में सेंट्रल पोजीशन पे दोनों मोल फ्रैक्शन जो होंगी वो 0.5 हो जाएंगी, फिर आगे जाके एक रिच होती जाएगी और दूसरी जो है वो पोअर होती जाएगी। जैसे XA जो है यहाँ पे 1 से कम होता गया, ठीक है, 0.9, फिर 0.8, फिर 0.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस तरह से दूसरा जो है वो रिच होता गया, 0 से 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1। सो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से है। This line shows the vapor pressure which is only due to the component B। यहाँ पे क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे बनता जा रहा है, यहाँ पे A कंपोनेंट जो है वो पोर होता जा रहा है और B कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो B कंपोनेंट हमारा बिल्कुल क्या हो गया, प्योर स्टेट में आ गया, बिल्कुल 1 हो गया, यानी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है दैट इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट B। यहाँ पे हम लिखेंगे P नॉट B मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट। बस स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं लिखने में, हमेशा ये आपने ध्यान में रखना है, दिस वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट B। एंड यहाँ पे क्या है, B कंपोनेंट आपका रिच है, लेकिन धीरे धीरे B कंपोनेंट आपका पोअर होता जा रहा है और A कंपोनेंट रिच होता जा रहा है, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट A। Okay, so this is the vapor pressure of component B in pure state and this is the vapor pressure of component A in pure state. So यहाँ पे किसका वेपर प्रेशर कौन सा, अब यहाँ पे बीच में क्या बन रहे हैं वेपर प्रेशर, मतलब हर एक टेस्ट ट्यूब में A कंपोनेंट भी है B कंपोनेंट भी है, मींस पार्शियल वेपर प्रेशर्स बन रहे हैं, और जो ये वेपर प्रेशर हैं ये सिर्फ प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर हैं। बीच में जो वेपर प्रेशर्स बने दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर्स, उनमें दोनों टेस्ट ट्यूब्स में दोनों चीजें हैं, हर एक टेस्ट ट्यूब में A कंपोनेंट भी है
है, बी कंपोनेंट भी है। सो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बना दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपको पता है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी एंड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। और यहाँ पे इस लाइन में जो वेपर प्रेशर बना दैट इज the partial vapor pressure of component A, and according to Raoult's law this is equal to the mole fraction of component A and the vapor pressure of component A in pure state। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और ये हमारे पास टोटल, अब ये दोनों को हमने जोड़ दिया यानी एक बीकर में हमने दोनों को डाल दिया, तो ये हमारे पास बन गया टोटल वेपर प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो स्टूडेंट्स ऑलवेज गलत करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, ये आपने अच्छे से ग्राफ बनाना है क्योंकि ग्राफ के ही मार्क्स हैं। ओके, सो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या क्या पता चल रहा है, एक तो ये कि हमने मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया, और मोल फ्रैक्शंस में हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं XA और XB, और दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं हमारे, वो दोनों ही कंपोनेंट्स हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट। सो इस ग्राफ में हमने क्या देखा, हमने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को ड्रॉ किया, और हमने दो कंपोनेंट्स लिए XA और XB, यानी दो मोल फ्रैक्शंस लिए हैं हमने, और ये दोनों ही कंपोनेंट्स A और B दोनों कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, लिक्विड्स हैं, और ये दोनों ही कंपोनेंट्स हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। ओके, और लिक्विड मिक्सचर्स कैसे हैं, ये आपस में होमोजीनियस हैं। कभी भी हम ऐसा लिक्विड मिक्सचर नहीं ले सकते राउल्ट्स लॉ में जो आपस में यहाँ पे इस खासकर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो आपस में क्या होंगे, मिसिबल नहीं होंगे, इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स हम नहीं लेंगे। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि हमारे दोनों ही कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, इसलिए ये ग्राफ हमें थोड़ा सा एक साइड से हमें एलिवेटेड ग्राफ मिलेगा। यहां से मेरा ग्राफ एलिवेटेड, आप यहां से भी एलिवेटेड कर सकते हैं, यहां से भी एलिवेटेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी एक जैसी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, दूसरा कंपोनेंट कम वोलेटाइल होगा। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, और वो यानी ज्यादा रिचर होने के कारण उस साइड ग्राफ आपको ज्यादा एलिवेटेड मिलेगा। और जो टोटल वेपर प्रेशर कर्व होगा वो भी ऑलवेज आपको स्लाइडिंग ही मिलेगा, या तो यहां से नीचे डाउन होता हुआ या यहां से नीचे डाउन होता हुआ मिलेगा। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको क्या है, दिस लॉ, दिस लिक्विड पेयर्स that obey Raoult's law, liquid pairs that obey Raoult's law are called as आइडियल सॉल्यूशंस। मेरा नेक्स्ट टॉपिक आइडियल सॉल्यूशंस का ही है। ऐसे लिक्विड पेयर्स जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस, सच पेयर्स आर हाउएवर वेरी लिमिटेड। ऐसे सॉल्यूशंस इतने आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, लिमिटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे कि बेंजीन है, टोल्विन है, मैं पहले भी एग्जांपल ले चुकी हूं बेंजीन टोल्विन की, हेक्सेन हेप्टेन की, हेक्सेन है, हेप्टेन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ लिक्विड्स which obey the Raoult's law, these are the ideal solutions. Okay, so such solutions are known as ideal solutions which obeys the Raoult's law. आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं। ओके, हाँ चल बोल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस फर्स्ट ऑफ ऑल विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। सबसे पहली बात तो ये कि आइडियल सॉल्यूशंस जो होंगे वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे। अब राउल्ट्स लॉ क्या है वो आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। ओके, दूसरी बात, ऐसे सॉल्यूशंस जब भी आपस में मिक्स होंगे उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0 मीन्स देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी, no change in volume. Delta H is, you know, as already you know in your 11th class, delta H is change in enthalpy and delta V is change in volume. ना तो यहाँ पे कोई इंथैल्पी चेंज होगी, ना हीट इवॉल्व होगी, ना हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, और नेचुरली जब हीट इवॉल्व नहीं होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड नहीं होगी, ना कोई एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम होगा, ना कोई कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0. So ideal solutions are those solutions first of all which obeys the Raoult's law.
Second condition is in which enthalpy change is zero and in which there is no change in enthalpy and no change in volume. Delta H mixing is zero and delta V mixing is also equal to zero. So ideal solutions are those solutions in which there is no change in enthalpy and no change in volume. Such type of solutions in which AB molecular interactions actually इन आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस. मींस कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ए रिप्रेजेंट फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट फॉर सल्यूट. सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, कहने का मतलब जो उनके बीच की फोर्सेस हैं, दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज इन ए एंड BB. मीन्स जो सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शंस हैं और जो सल्यूट के बीच की इंटरेक्शंस हैं वो सेम मैग्नीट्यूड की हैं जो सल्यूट और सॉल्वेंट के मैग्नीट्यूड्स की हैं. तो इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो अगर हम 50 सेंटीमीटर क्यूब हम बेंजीन को ऐड करें एक बीकर में और 50 सेंटीमीटर क्यूब ही हम टॉल्विन ले लें, तो हमारे पास नेट सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, बिकॉज यहां पे ना तो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई ना ही कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई. बेंजीन और टॉल्विन जो हैं दोनों ही ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आइडियल सोल्यूशन फ्रेम करते हैं और दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा. दैट इज आवर सॉल्यूशंस विल बी द 100 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हुआ? आइडियल में तो आपने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कि सल्यूट सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज सॉल्वेंट एंड सल्यूट. लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होगा. जो सल्यूट सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगी दे आर ऑफ नॉट सेम मैग्नीट्यूड. उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा एज इन ए एंड बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस. मींस जो फोर्सेस सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होंगी उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा जो फोर्सेस सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच में होंगी. सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच में होंगी. कहने का मतलब डिफरेंट होंगी. सो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं, पहली बात तो ये कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं दे डोंट ओबे द राउल्ट्स लॉ. ओके, एंड इन विच फर्स्ट कंडीशन इज दे डोंट ओबे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. उनमें डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा V मिक्सिंग इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0. कहने का मतलब वहां पे इंथैल्पी चेंज भी होगी और वॉल्यूम चेंज भी होगा. मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो जब डेल्टा H मिक्सिंग इंथैल्पी चेंज 0 के बराबर नहीं है, वॉल्यूम चेंज 0 के बराबर नहीं है, कहने का मतलब इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. दैट्स व्हाई अवर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डिवाइडेड इनटू 2 डेविएशंस. मींस वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे हैं वो डेविएट हो जाते हैं राउल्ट्स लॉ से और वो आपको 2 टाइप की डेविएशंस देते हैं. उन 2 टाइप की डेविएशंस को यहां पर हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. ओके, so these are 2 type of deviations which you read in this non-ideal solutions. सबसे पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, फिर हम ग्राफिकली बताएंगे आपको. पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि इसमें जो हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, जो सल्यूट सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है that is weaker as compared to solvent and solute. क्या मतलब हुआ
कि जब भी हम सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि हमने राउल्ट्स लॉ के लिए दो कंपोनेंट्स को ऐड करना है, दो लिक्विड्स को लेना है, जब भी हम सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे उनके बीच की जो फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी एज कंपेयर टू जो खुद सॉल्वेंट सॉल्वेंट की हैं और सल्यूट सल्यूट की हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूं, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन ले लिया या मैं एसीटोन ले लूं। अगर मैं इथेनॉल देखूं तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ओके, तो इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इथेनॉल जो है खुद उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एसीटोन ले लूं, उसमें भी बॉन्ड है। लेकिन अगर इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन या इथेनॉल या एसीटोन आपस में ऐड होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगे, उनके बीच में फोर्सेस जो है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में ऐड होंगे तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीकर हो जाएंगी एज कंपेयर टू खुद जो इंडिविजुअल सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच की फोर्सेस हैं। दूसरा, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन को देखूं तो नेगेटिव डेविएशंस में क्या है, जो मेरी सॉल्वेंट सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। ओके, जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, देयर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सल्यूट। ओके, अगर मैं सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करती हूं, उनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट और सल्यूट। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूं कि अगर मैं ले लूं एक क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ओके, ये ए बी हैं मेरे। इस टाइप के सॉल्यूशंस में नेगेटिव डेविएशंस में क्या है, जैसे एक क्लोरोफॉर्म है और एक मेरा एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो नेगेटिव डेविएशंस हमेशा वहां पे बनेगी जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शंस में कोई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा और उनकी इंटरेक्शंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू अगर हम इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म को देखें या एसीटोन को देखें। तो यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशंस में सल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीकर होती हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सल्यूट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको इथेनॉल की और साइक्लोहेक्सेन की। और दूसरा मैंने कहा नेगेटिव डेविएशंस में क्या होता है, सल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मैं ग्राफिकली, अब क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कौन, नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशन, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी जब हम ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन लेंगे, this graph is for positive deviation। ओके, तो ग्राफ तो हमारा सेम ही हमने बनाना है जैसे हमने पहले बनाया राउल्ट्स लॉ का, सिर्फ यहां पे हमारा कर्व थोड़ा एलिवेटेड करके बनाना है। हमने थोड़ी वेपर प्रेशर्स जो हमने बनाने हैं वो एलिवेटेड करके बनाने हैं, ऊपर करके बनाने हैं। ओके, तो बाकी सेम है यहाँ पे भी, एक्स ए जैसे 1, एक्स बी 0, एक्स ए यहाँ पे 0 होगा, एक्स बी यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट बी है, यहाँ पे वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू कंपोनेंट ए है। यहाँ पे, अब यहाँ पे बीच में हमारे पास ये क्या बने हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, ड्यू टू द कंपोनेंट बी, और यहाँ पे वेपर प्रेशर है ड्यू टू द कंपोनेंट ए, और ये हमारा है टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे जैसे कंपोनेंट हमारे, जहां पे हमारा सिर्फ कंपोनेंट 1 है रिच, ठीक है, ए कंपोनेंट रिच है, बी हमारा 0 है। जैसे जैसे बी कंपोनेंट हमारा बढ़ता गया, बी कंपोनेंट के बढ़ने के साथ साथ हमने देखा कि वेपर प्रेशर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, उससे भी हमें ज्यादा मिला। The vapor pressure is found to be more than expected on the basis of Raoult's law, as mole fraction B is added to the mole fraction A,
as the mole fraction of B component is added to the mole fraction of component A, the vapor pressure which is found to be expected on the basis of Raoult's law is found to be more. वेपर प्रेशर हमें राउल्ट्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिला, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा एलिवेटेड ड्रॉ किया है. सिमिलरली रिवर्स कंडीशन में भी जब हम देखें, यहाँ पे हमारा जैसे जैसे ए कंपोनेंट एडेड होता गया बी कंपोनेंट के साथ, तो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज फाउंड टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ. जो पार्शियल वेपर प्रेशर हमें मिलना था उससे हमें ज्यादा मिला. सो हियर इन पॉजिटिव डेविएशंस आपने क्या देखा, यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर हमारे बने वो हमें राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो थे उससे भी हमें ज्यादा मिले, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिले, ज्यादा वेपर प्रेशर यहाँ पे बना. सो मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज फाउंड. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सोल्यूशंस, ऐसे सोल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा एज कंपेयर टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स. क्यों कम होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है. तो एज यू नो, हायर द वेपर प्रेशर लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट. जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा. सो यहाँ पे वेपर प्रेशर आपके मैक्सिमम बने हैं. वेपर प्रेशर मैक्सिमम बनने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? लोअर मिलेंगे. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस, remember it, in case of positive deviations you will get minimum boiling azeotrops. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी शॉर्ट टाइप्स में आपको अलग से पूछा जाता है कि पॉजिटिव डेविएशंस में कौन से एजिट्रॉप्स बनते हैं और नेगेटिव डेविएशंस में कौन से आपने याद रखना है. पॉजिटिव डेविएशंस में वेपर प्रेशर हायर होता है. वेपर प्रेशर हायर मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वहां पे लोअर होगा. बॉइलिंग पॉइंट लोअर मीन्स हमें मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मिलेंगे. अब एजिट्रॉप्स क्या है, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि एजिट्रॉप्स क्या होते हैं. एजिट्रॉप्स वो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स which distills without, important thing is without change in composition at constant temperature. This is the definition of azeotrops. In positive deviations you will get the minimum boiling azeotrops. And what are the azeotrops? Azeotrops are those liquid mixtures which distills without change in composition at constant temperature. ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी. जैसे आप डिस्टिलेशन करते हो, 2-3 लिक्विड मिक्सचर्स की डिस्टिलेशन करते हो फॉर देयर प्योरिटी, प्योर करने के लिए, उन लिक्विड कंपोनेंट्स को प्योर करने के लिए हम लेबोरेटरीज में हमेशा लिक्विड जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसको प्योर करने के लिए डिस्टिलेशन करते हैं. आपको ये पता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो. तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे सपोज करो हमने एक फ्लास्क में, हमने एक राउंड वाटर फ्लास्क जिसको हमने बीकर के ऊपर रखा है, उसके बीच में हमने बेंजीन भी डाला है, हमने टॉल्विन भी डाला है, हमने हेक्सेन भी डाला है. ओके, तो अब क्या होता है जब जब डिस्टिलेशन के बाद जब हमें प्योर फॉर्म में लिक्विड्स मिलते हैं, जैसे बेंजीन जब मिलेगा हमें एट कांस्टेंट 50 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जब तक पूरा बेंजीन सेपरेट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 50 डिग्री और बेंजीन बेंजीन ही रहेगा. बेंजीन के साथ टॉल्विन या हेक्सेन आपको नहीं मिलेगा. सिमिलरली जब बेंजीन सेपरेट हो जाएगा, टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा, तो 60 डिग्री पे हमें टॉल्विन सेपरेट होके मिलेगा और उस टाइम टॉल्विन की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, टॉल्विन टॉल्विन ही रहेगा और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट 60 डिग्री रहेगा. आफ्टर दैट जब टॉल्विन सेपरेट हो जाएगा तो हमें 70 डिग्री पे हेक्सेन मिलेगा. सो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एजिट्रॉप्स. एजिट्रॉप्स are those liquid mixtures which distills without change in composition at constant temperature. और आपको पॉजिटिव डेविएशंस में मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मिलेंगे. सिमिलरली आगे जब हम नेगेटिव डेविएशंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव डेविएशंस में जो मैं आपको पहले ही ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पढ़ा चुकी हूं कि नेगेटिव डेविएशंस में क्या होता है, ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी. जैसे मैंने आपको कहा था क्लोरोफॉर्म ले लें और हम एसीटोन ले लें. जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में ऐड होंगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. दैट्स व्हाई
जो जैसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट डेविएशन का ग्राफ जो सेम हम लेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यहां पर क्या होगा, जैसे ही बी कंपोनेंट ए कंपोनेंट में ऐड होगा तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी. द वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी लोअर एज कंपेयर टू विच इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द राउट्स लॉ. जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो हमें कम मिलेगा जो हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये हम राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो एज बी कंपोनेंट इज एडेड टू कंपोनेंट ए, the molecular interactions are going to be very much stronger and the vapor pressure is found to be lower as expected on the basis of the Raoult's law. और रिवर्स केस में भी हमें सेम ऐसे ही ग्राफ मिलेगा. हमें ग्राफ जो है यहाँ पे नीचे मिलेगा और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशंस. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम, यहाँ पे हमें मिनिमम वेपर प्रेशर मिलेंगे. और मिनिमम वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि इस केस में हमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा. वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो मिनिमम वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मिनिमम वेपर प्रेशर मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. सो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशंस हियर वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स. और एजोट्रॉप्स जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स विच डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशंस में आपको क्या मिलेंगे, आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स मिलेंगे. सो दिस इज माय टॉपिक, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviations and negative deviations. Thank you. Okay.